Hi children, how are you? I hope you all are doing fine. Today I am discussing New Fresh Way English Grammar Class 5 Lesson number 4 Adjectives. So in the previous video I had discussed up till here kinds of adjectives. I had discussed all the 6 kinds, and today I am going to discuss use of some adjectives. So what are the first ones? Each and every. Each is used in speaking of 2 or more persons or things when the number is definite. Like when you know when things are countable or when things are definite, then we use each. Like each member of the family bathed in the river. And every is used when you are speaking of more than 2 persons. Okay, and the number is indefinite, like you do not know they are 10, 12, 100, how many. So every man should do his duty. After that, some and any. Some means indefinite quantity or indefinite number of persons, things, and any is used instead of some in questions and after negatives. So generally we use some if we are using them in interrogative sentences when we are expecting a positive or affirmative answer. Okay, and any is used when we are expecting a negative answer. Like may I have some milk please means we are positive that we will get some milk. Okay, much, many. Much is used to denote quantity, like uncountable things, and many is used with countable things. Little is used with hardly any, means ना के बराबर. A little means थोड़ा but ज़्यादा नहीं, and the little is used with not much but जितना भी है वो सारा. Okay, few, a few, the few. Few means not many या फिर थोड़ा बहुत, and a few means थोड़ा, and the few means ज़्यादा नहीं but जितना है वो सारा. So now you would be wondering कि little, a little, the little और few, a few, the few हम कहाँ यूज़ करते हैं? Little हम यूज़ करते हैं uncountable चीज़ों के साथ, like milk. Okay, and few हम यूज़ करते हैं generally countable चीज़ों के साथ. Now a little, a few, a little is used to denote quantity जैसे मैंने आपको अभी बताया, and a few is used to denote number. So we have exercise 30. Fill in the blanks by choosing the correct adjectives from those given in the brackets. आपको brackets में जो given है उसमें आपको correct option choose करना है. Dash man should do his duty. Every man, because man is countable. I don't have any money. Any इसलिए कि मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है. Okay. Third we have they have dash wealth, much wealth. Dash people were killed, many people were killed. Dash days rest, a few days rest did him much good. Dash learning is a dangerous thing, a little learning. Second we have fill in the blanks with some or any. आपको some or any में से fill करना है. The ration shop did not have any sugar, मतलब थी ही नहीं. The beggar doesn't have any money. Can I have some coffee? My friend asked for some money but I didn't have any. Would you lend me some books? Request है इसीलिए some. Third में हमें much और many fill करने हैं. How much rice do you need? How many boys are present in the class? Now boys are countable इसलिए many. I haven't much time. He made many mistakes in his letter. How many stories? How much milk? Now milk is uncountable इसलिए how much. Next we have comparison of adjectives. अब first sentence is Varinder owns a car, he is a rich man. Surinder owns 2 houses and a car, he is richer than Varinder. अब जब हमें 2 लोगों को कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरिजन के लिए सेकंड डिग्री यूज करते हैं. नरिंदर owns 2 houses and 3 cars, he is the richest of the 3. जब आपको 2 से ज्यादा लोगों को कंपेयर करना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. फाइन. कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि सेकंड जब हमें 2 चीजों को कंपेयर करना है, एंड सुपरलेटिव इज जब हमें 2 से ज्यादा लोगों को कंपेयर करना है. फाइन. तो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव मीन्स जो बेस वर्ड है फर्स्ट डिग्री जैसे ब्राइट. कंपैरेटिव जब हम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ब्राइटर. सुपरलेटिव जब मोर देन 2 तो ब्राइटेस्ट. इसी तरह क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, और इस तरीके से आप ये सारी पढ़ सकते हैं. फिर बी में है बाय एडिंग आर एंड एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री हम ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ओके. सी में बाय डबलिंग द कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ई आर एंड ई एस टी व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन द सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वोवल. जैसे बिग है बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. डी में बाय चेंजिंग वाई, अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो हम उसमें आई ई आर और आई ई एस टी से डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट. ई में मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables एंड
all adjectives of more than 2 syllables form their comparatives by having more and their superlatives by having most. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आए. जैसे ब्यूटीफुल, अब इसमें 2 syllables हैं तो इसका होगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. देन एफ में देर आर फ्यू एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इरेगुलर होती है, मीन्स उनका वर्ड का फॉर्म चेंज हो जाता है. जैसे बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं बोलते, बैड, वर्स, वर्स्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. लिटल, लेस, लीस्ट. मैनी या मच, मोर, मोस्ट. फार, फर्दर, फर्देस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. देन कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजंस, कुछ सेंटेंसेस में हम कंपैरिजन करते हैं एज लगा के, जैसे विनोद इज एज स्ट्रॉन्ग एज विक्रम. ठीक है. और कुछ में हम दैन से करते हैं, इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे. द नाइफ इज शार्पर देन दैट. अगर 3 और उससे ज्यादा लोग हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो उसमें द लग जाता है सुपरलेटिव डिग्री में. मिस्टर कुमार इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल मैन. ठीक है. देन वी हैव एक्सरसाइज नंबर 31. इसमें हमें टेबल गिवन है और हमें एक एक एडजेक्टिव गिवन है, हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. ग्रीडी, ग्रीडियर, ग्रीडिएस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल. मेनी, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. बिग, बिगर, बिगेस्ट. देन वी हैव एक्सरसाइज 32. इसमें हमें एज और एज फॉर्म से सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्मृति इज एज प्रिटी एज हर सिस्टर. सेकेंड में होगा मिस्टर शर्मा इज एज रिच एज मिस्टर कपूर. दिस स्टोरी इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट. माई हाउस इज एज बिग एज योर्स. ओके. फिफ्थ में होगा रवि इज एज टॉल एज अरुण. सुरिंदर इज एज हार्ड वर्किंग एज वरिंदर. 33 में हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि जो सेकंड वाली होती है. जैसे फर्स्ट में गिवन है द सन इज बिगर देन द अर्थ. सेकंड होगा दिल्ली इज हॉटर देन शिमला. अदिति इज मोर ब्यूटीफुल देन अनु. द सन इज ब्राइटर देन द मून. अ मोटर बाइक इज चीपर देन अ कार. दिसंबर इज कोल्डर देन अक्टूबर. 34th में भी हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं सुपरलेटिव डिग्री. ओके. जैसे द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है. इसी तरह बाकी में होगा कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द टाउन. द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ ऑल. टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन. एक्सरसाइज 35 में हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. हमें ब्रैकेट में एडजेक्टिव की फॉर्म्स गिवन है जो भी सूटेबल है उससे. तो फर्स्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए द एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. कैप्सिकम इज ग्रीनर देन कैबेज. द डॉग इज द मोस्ट फर्थफुल एनिमल, क्योंकि द लगा था इसलिए सुपरलेटिव डिग्री. फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ. A whale is the heaviest of all animals. A pig is fatter than a dog. The Qutub Minar is taller than any other tower. Eating home cooked food is better than eating street food. The patient is worse than before. Sachin is the best student in the class. तो इन सब में हमने suitable degrees use करी हैं. With this we come to the end of lesson number 4, adjectives of our grammar. I hope you are clear with the exercises. I'll meet you up in the next video. Take care children. Bye bye.